start. Let me come to the board. Yeah, basics of stock market. Fine. But first of all, we will just see some myth regarding the share market, which is there around us, which are actually created by the people around us. Okay, and we'll just see whether it's actually it is there or not. It is actually truth or not. Okay, so first myth regarding the share market is that it is satta, or you may say it is very risky. This is what we have seen in last year also, but then also let's just we repeat it. Okay, because people says yes, share market is a satta, it's risky, paisa डालेगा तो डूब जाएगा. Okay, for that we have seen this one that let's suppose if I just say the graph for the long term. Let's suppose if I say Sensex. I hope my screen is visible to you. Yes, sir, it's visible. Okay, perfect. The internet के धोखा देता है. Yeah. So if I just click on this max, this is what is the performance of Sensex, मतलब अपना share market. ठीक है, in this share market we are having two terms or two exchanges, that is a BSE and NSE. Don't worry, we'll be just talking in depth about everything. ठीक है, so I'm just giving you the highlights today, मतलब क्या क्या पढ़ने वाले वगैरह. ठीक है, so BSE and NSE, these are the two stock exchange. BSE का जो भी इंडेक्स है दैट इज कॉल्ड सेंसेक्स, एंड NSE का जो भी इंडेक्स है दैट इज कॉल्ड निफ्टी. ये क्या है, कैसे बना, कितना कंपनी है, सब डिटेल में देखेंगे. Don't worry. Share market, just for a time being, just assume this is my share market performance. Now you can see over the period, means over the long term, yes, it has actually given some good, returns. Okay, so if I talk regarding the short term, it is 100% risky. I will not say ki just 10%, 100% risky. If you do not know regarding the stock market, and if you're investing for the short time, it's 100% risky. Okay, but if you are looking for those like 10 years, 20 years, or something like that, means just for long term, are you getting it? Then obviously that risk factor goes like is just comes to the zero. Okay, I will not say it's not at all risky, but stock market actually we cannot say anything regarding it. Okay, but for a long term, obviously that risk factor is we can just minimize it. Are you getting it? Okay, so long term वो actual में सट्टा नहीं है. If you just do a proper study and if you just invest in a proper stocks, then obviously it is not satta at all. Are you getting? For a long term? Once again, for a short term, कौन सा भी company वो risky है ही, if you are not means knowing the proper how to analyze and all. ठीक है, short term it is पक्का risky, but long term, like long term, whenever I say long term means what is like 10 5 years, 10 years, 20 years likewise. ठीक है, not ki just for a 2 months, 3 months and all. ठीक है, minimum 5 years, that I will just call as a long term. In terms of share market, long term is not 1 year, but for me it is minimum 5 years. Okay, so if you just invest for more than 5 years, now you can just take any time period of 5 years, you will be seeing is you will be in profit. Are you getting it? Okay, so almost means always just invest for a long term, then it is not a shutdown. Getting it? Okay. Second myth is that now second the people says is that if you want to go in a stock market, then you must be like very good in a finance, you must do some MBA in finance, or you must be from the commerce background, then only you can do it. No, it is also not true. Are you getting it? It is also not true. Okay, because if you just see that HNI means high net investor, means those who are having a portfolio of like crores, not single triple digit crores or 4 digit crores in stock market. They are not every time, like MBA in finance, or they have just done a great study in, like of a share market and all. Okay, Acha, let me just give you the example. Have you heard the name of Radhakishan Damani? Anyone? Yes, sir. Yeah, Yes, who Yes, is sir. sir. that person? DMart का owner, He's sir. the founder DMart of के DMart. owner. Are you getting it? ठीक है. अच्छा, have you heard of Rakesh Jhunjhunwala? Yes. Yes, sir. Yes, sir. He's just like a big bull in the share market. Are you getting it? Okay. So these are the people now. Yeah, Rakesh Jhunjhunwala is fine. He was doing CA and he had just got means finance background and all. But if I talk regarding Radhakishan Damani, na, he is just undergraduate. Are you getting it? If you just search for that Radhakishan Daman, he just undergraduate. And Rakesh Jhunjhunwala sir says ki yeah, Radhakishan Daman is a guru for me in the share market. Are you getting it? Okay? So it has nothing to it has nothing to do about means whether you know strong finance or not, means then only you can just enter in a share market. No, it is not at all.
ठीक है. If I just talk regarding the Radhakishan Damani, as I told, means before they started with the DMart. DMart अभी just I think list 3-4 साल पहले हुआ है. ठीक है. लिस्टिंग डिमांड पहले से था, बट लिस्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग दैट यू विल जस्ट कम टू नो लेटर ऑन. ठीक है. सो नाउ दैट पर्सन वाज जस्ट लाइक अंडर ग्रेजुएट एंड ही जस्ट स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. ठीक है. देन ही जस्ट मेड सम हैंडसम प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट. देन ही रियलाइज की मींस नाउ आई एम जस्ट इन्वेस्टिंग इन सम कंपनीज, आई एम जस्ट गेटिंग प्रॉफिट. Then he started realizing, no, now I will start some company in that people will invest and they will just grow their money. Okay, then he just went to US and all the he studied about the Walmart. I hope you know Walmart. What is the Walmart? सर उधर का सुपरमार्केट है. Yeah, उधर का डीमार्ट, मतलब अपन बोल सकते हैं यूएस का वगैरह डीमार्ट. ठीक है. So he just went there, he just studied how that Walmart chain works and all, and then he just come to the India and according to the Indian people, according to Indian strategy, according to Indian psychology, he just started कि मतलब डीमार्ट कैसे चालू करने के. Are you getting it? And then he created this company, and after some years, he feel कि अभी ये must establish है. Now we can just go on share market. Now we can just list this company on share market, and now people are investing in it, and they are just means enjoying the profits. Are you getting it? Okay. So it is not at all mandatory for people to have the strong background knowledge. Okay. If I just take one more name, is something. Porinja Viliat something. I do not remember that properly. If I just search about them, that guy also from very poor family. Okay, he was not having literally the money for education also. That was the situations. And if I just tell you that Porinja something, yeah, Porinja, yeah, he is this Porinja Viliat. This particular one. You can just search for his success story, Poninja Villas success story. You will get everything. When he was like a child and means they were like means the parents were not able to afford that education also. Okay? I should go for success. He has just shared everything. You can just read this one. Why I'm showing this everything, because this is just like those the people who says ki you need to have a strong background of finance, you need to study this one, you need to do MBA, then only you can just invest. No, it is not like that. Okay, guys, believe me, those who are like the CA and all, those who are having the finance का background also, they are also sometimes they are not investing directly in a stock market. ऐसा भी है, ऐसे भी लोग हैं. Those who are actually from the finance background, but they are also not investing in the stock market directly. They are going to the mutual funds and all, but they are not investing directly in the stock market. And why to avoid the mutual fund and all that, I will just cover in the subsequent lecture. Okay, so if you just see this one success story of this particular guy on the internet, then you will understand that उनको भी कुछ finance का background वगैरह नहीं था. Okay, but then also he just like now a good stock picker in a market. ठीक है. You can just see his story, just search for it. You will just get to know. मतलब उनका फार्म वगैरह वो भी सब है. I think उसके फोटोज वगैरह. I don't know. It is for this guy also. ठीक है. So what I mean to say, I just want to say is that the people who says कि strong background चाहिए, जरूरत नहीं है. We need not to have the strong background. ठीक है. This is the second myth regarding the stock market. ठीक है. Not needed. Strong background जरूरत नहीं है. ठीक है. Third thing is that पीपल सेज कि मतलब स्टॉक मार्केट में अगर एंटर करना है बहुत पैसा चाहिए, अगर ज्यादा पैसा रहेगा तो ही तो कमाएगा, अदरवाइज नहीं कमाएगा. वंस अगेन इट इज नॉट ट्रू. ठीक है. पीपल सेज कि मतलब हाँ, इफ यू आर हैविंग क्रोर्स एंड समथिंग फंड व्हिच इज जस्ट रिमेनिंग इन अ बैंक एंड देन यू वांट टू टेक रिस्क ऑन दैट, देन टेक इट, अदरवाइज डू नॉट टेक इट. ठीक है. ऐसा कुछ नहीं. मतलब इट इज नॉट बॉटम लाइन कि हाँ, इफ यू वांट टू एंटर इन स्टॉक मार्केट तो मिनिमम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. नथिंग इज नॉट नथिंग लाइक दैट. गेटिंग इट. ठीक है. इफ यू वांट इमेजेस इन्वेस्ट 100 रुपीज आल्सो, बस वो भी चलता है. ऐसा नहीं कि मतलब 1 लाख मिनिमम में उतना करना चाहिए. नो. ठीक है. सो दिस आल्सो द मिथ की मतलब पीपल सेज कि इफ यू हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, देन ओनली एंटर इन स्टॉक मार्केट. नो, इट इज नॉट ट्रू. ठीक है. एज आई टोल्ड दैट व्हाट वी हैव सीन इन फाइनेंशियल प्लानिंग, वी आर जस्ट सेइंग दैट वी कैन स्टार्ट विद द 2000 rupees per month, 2000 rupees per month investing. That will also do, and that will also lead to a huge amount after some 10 or 20 years. Are you getting it? 10, 20 or 40 years, whatever that. Okay. So it is also not true that we need to invest a huge amount at starting and all. Hi, if you are having and if you are investing, it's good, but it is not at all compulsory कि आपके पास huge amount होना ही चाहिए तब जाके profit होगा. No.
Are you getting it? ठीक है, you can start with the less amount as well. ठीक है, बट यू मस्ट नो कि मतलब कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है वगैरह. वी जस्ट सी सम एग्जांपल टुडे, मतलब कैसे कंपनी वगैरह सिलेक्ट करना है. Are you getting it? ठीक है. Then the fourth one, this is कि people says कि मतलब you cannot make money in a renowned company, means those who are well already established and all, and if you just invest in that तो फिर मजा नहीं, मतलब इतना पैसा नहीं आएगा. ठीक है, you have to just search for some penny stocks, then after some years they will become क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, कुछ तो मल्टी बैगर. ठीक है, मल्टी बैगर मतलब स्टार्टिंग में मैंने 10 रुपए इन्वेस्ट किया, बाद में उसका 1000 रुपया बना, उसको ऐसा बोलते हैं मल्टी बैगर. ठीक है, सो पीपल नॉर्मली सेज कि मतलब यू नीड टू इन्वेस्ट इन सच स्टॉक, पेनी स्टॉक, हु आर राइट नाउ दे आर नॉट अ ग्रेट कंपनी. ठीक है, बट आफ्टर सम ईयर दे विल मी लाइक मतलब दे विल हैव सम good potential, they will be just a renowned company. ठीक है, but already if you just involve in a company which is a good, or you may say which is the established one, then you cannot make a profit, more profit in that. That is just the myth. Okay, so always it is not possible for me to find out which one is a value company. Means always it's not me. Value company means what? The one who just started just right now. So we cannot predict about its future. ठीक है, हाँ, if you know everything regarding it, how his management is, what is his business plan, how they are expanding, what are the future goals, what is their order book and all. In that basis, on that basis, if you want to just invest, then it's fine. But for that purpose, you must know each and everything regarding the company. ठीक है, but the people says मतलब जो भी established company उसमें ही पैसा डालेगा तो इतना नहीं कमाएगा. It is also not true. We'll just see the examples. Are you getting it? ठीक है, so let's suppose means how to go for that one. Let's suppose I will just check for financials of some company. Let me just go on my platform. There are some sites which I will tell you to refer. Otherwise, I will just take example on paper itself. Otherwise, that loading the site and all is just taking some time. Okay, let's suppose try to understand. Okay, how to invest in renowned companies and all. Okay, let's suppose if I just take example of, let's suppose any company. Let's suppose if I talk regarding, let's suppose Britannia. ठीक है, बिस्किट कंपनी. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड अब ये कैसे करना है. ठीक है, व्हेनेवर यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, सोचना कैसे, देखो म्हणजे हाउ टू इन्वेस्ट, मतलब वन ऑफ द स्ट्रेटजी आई एम जस्ट टेलिंग यू रिगार्डिंग द फंडामेंटल एनालिसिस. एवरीवन जस्ट be careful and just be attentive. ठीक है, is everyone ready to understand this particular strategy? Yes, sir. Say yes sir जोर से एकदम. Yes, sir. Yes, Yeah, sir. perfect. Very good, Yes, very sir. good. Have the same Josh. ठीक है, let's see अभी कैसे करते हैं. How to understand this one? We will be seeing some terminologies also which are used in a commerce. ठीक है, let's suppose if I just take an example of Britannia. Guys, I will not मेरा handwriting ऐसे ही रहेगा, मैं पूरा कभी लिखता नहीं, टाइम पास नहीं करता. अपना मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब फंडा समझ में आना चाहिए. ठीक है, yeah, Britannia. Let's suppose I will just take the result of it. I'm just having some numbers with me. I will just share with you. Okay. If you want, you may just go to any website like Money Control or any screener.com. There you will be getting. Let's suppose here I'm just taking some values which I am having with me. Okay. Let's suppose I'm talking regarding the this particular year 2014, 15, 2016, 2017, 2018. Let it be. इतना ही जाता हूँ, मेरा जगह खत्म हो गया. ठीक है, if you want you may go up to 2019, 20 वगैरह something. ठीक है, let's suppose I'm just considering for this for 5 years. Try to understand. ठीक है, I'm just analyzing the financial statement of Britannia. Are you getting it? I'm just telling you the fact means how to analyze whether to it is good to invest in this particular company or not. One strategy. ठीक है, कैसे करना है? Just take some 5 to 10 years का उसका financial record. You may just get it on the internet. ठीक है, yeah, let's suppose this is my screener.com. I will just tell you how to just go to this one, and if you just go below this one, you can get these results. Now these are the results from 2018 onwards. ठीक है, here you will be getting much, मतलब बहुत सारे numbers है. Here we are having the profit and loss का वगैरह रिजल्ट का वगैरह भी. ठीक है, so I will just tell you later on, मतलब ये कैसे इसको देखने का वगैरह. फिलहाल I am just extracting some important terms from this one. ठीक है, important things. ठीक है, the things are like sales मतलब turnover. Fine. Then I'm just taking this profit after tax, net profit. That is a PAT also called, otherwise a net profit is called. Okay. Then I'll be talking regarding that share price. These are the some things I'm just taking. जो भी important है उतना ही ले रहा हूँ. Okay. So if you just go on this particular screener.com, if you just enter for any company, it will just show that financial record for now 18 से 21 मतलब है, मतलब अच्छा खासा record. Okay. If you want to go for this is like
I think in this is the quarterly manner. If you want to go for yearly तो भी आता है, ठीक है, इज क्वार्टरली, मतलब सितंबर का है, देन दिसंबर का है, देन मार्च का है, जून का है, सितंबर का, लाइकवाइज, ठीक है। इफ यू वांट टू गो फॉर ईयरली तो वो भी आता है, आर यू गेटिंग इट, यू कैन जस्ट गेट इट, ठीक है। तो मुझे करना क्या, लिसना या दिस वन, दिस इज फॉर ईयरली पैटर्न, मार्च का अपना जो फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं ना, मार्च टू मार्च, ठीक है, तो वो इसका पैटर्न है, ठीक है। तो यू कैन जस्ट गेट इट फ्रॉम दिस वन आल्सो। सेल्स मतलब व्हाट, टर्नओवर। उसके बाद देन प्रॉफिट, प्रॉफिट में भी बहुत सारा टाइप रहता है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। एंड देन विल बी इंटरेस्टिंग इन शेयर प्राइस, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। सो दिस आर द थ्री थिंग्स आई एम कंसीडरिंग, सो ऑन दैट बेसिस आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, लेट्स सी, फाइन, या। सो लेट्स सपोज आई एम कंसीडरिंग द ब्रिटानिया, these are the some years which I'll be considering, ठीक है। Now let's suppose I will just talk regarding the sales or turnover, sales or turnover, ठीक है। Now what do you mean by sales or a turnover of the company? पहले वो टर्म समझो, सेल्स एंड टर्नओवर समझता है क्या ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर? व्हेनेवर आई से टर्नओवर मतलब क्या? सर वो ईयर में कितना सेल किया तो प्रॉफिट मिला, या उस पर्टिकुलर ईयर में कितना बिजनेस किया, मतलब कितना सेल किया, कितना प्रोडक्ट सेल किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कितना सेलिंग किया। इफ आई से ब्रिटानिया तो उसका बिस्किट से अदरवाइज जो भी अदर प्रोडक्ट्स है, तो वो कितना सेल हुआ, आई गेट टोटल सेल, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ टर्नओवर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल बी जस्ट सीइंग सम फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज आल्सो, getting? So turnover was in 2014, it was just like 6,348 crores. These are the some numbers I have taken from the websites only, okay? So 7269 crore, then in 2016 it was 7881 crore, everything is in crore, then 8582, and then 9282 something, okay? So this was the turnover. So first of all you have to see the turnover of the company, sales बढ़ रहा है कि नहीं, वो very important है। Are you getting it? You must see कि उसका sales बढ़ रहा है कि नहीं। Are you getting it? ठीक है। So now in 2014 it was 6,000, around 6,000 crore. In 15 is 7,000. In 16 is 7,000 again, but it's around 8,000 crore. In 17 it is around 8,500. 18 9,000 something. So it's good ना। ठीक है। So first of all before investing in any company you have to see first of all sale, वो company grow कर रहा है कि नहीं, उसका sale बढ़ रहा है कि नहीं, कि घट रहा है। That is very important. So first of all you have to see for the turnover, ठीक है। टर्नओवर मतलब क्या, पूरा सेलिंग कितना किया, कितना बढ़ रहा है, उसका बिजनेस कितना बढ़ रहा है, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी फॉर दिस टर्नओवर, ठीक है। देन यू हैव टू टॉक रिगार्डिंग दिस पीएटी, पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ दिस इज द नेट प्रॉफिट, सम द टर्मिनोलॉजीज आर देयर, यू मे से द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट जो भी है, ठीक है। नाउ नेट प्रॉफिट मींस व्हाट, नाउ व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन दैट प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ कंपनी का बैलेंस शीट में? प्रॉफिट मतलब क्या रहेगा? नाउ दिस इज द टर्नओवर, दिस इज द सेल्स एंड द प्रॉफिट, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन देम? सर जो भी यूजफुल चीज है वो उस जगह पे पैसा डालने के बाद जो पैसा एक्स्ट्रा बचेगा। परफेक्ट, ठीक है। नाउ टर्नओवर मींस जितना सेल किया, ठीक है। नाउ प्रॉफिट मींस व्हाट, नाउ दिस इज व्हाट दे हैव अर्न, एक्चुअली दे हैव अर्न फ्रॉम द सेल्स। नाउ आफ्टर दैट जस्ट सबट्रैक्ट दिस, डिडक्टिंग एवरीथिंग, मतलब एम्प्लॉय सैलरी और यू नो एनी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनी असेट और लायबिलिटी जो भी है, असेट एंड लायबिलिटी नया टर्म कॉइन किया, ठीक है। दोज हु डोंट नो विल बी जस्ट कमिंग टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, डोंट वरी, ठीक है। सो नाउ टर्नओवर मींस जितना सेल किया, इतना पैसा कमाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद में जो भी खर्चा किया, डिपेंडिंग ऑन, मतलब ऑन एम्प्लॉयज का सैलरी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एनी अदर थिंग, ठीक है, वो सब डिडक्ट करने का। उसके बाद हाउ मच, नाउ एवरी कंपनी हैव टू पे देम सम इनकम टैक्स एंड ऑल, वो भी डिडक्ट करने का। एंड उसके बाद जो अमाउंट बचा है विच इज कॉल्ड द नेट प्रॉफिट, मतलब इतना पैसा एक्स्ट्रा बचा, आर यू गेटिंग इट, आफ्टर जस्ट डिडक्टिंग एवरीथिंग, मतलब ऑल द एक्सपेंसेस जो भी बचा उसको बोलते हैं पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी लेस देन टर्नओवर, टर्नओवर से ज्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो ही नहीं सकता, आर यू सर गेटिंग इट? हाँ बोल। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये डेट को भी इंक्लूड करता है, मतलब आफ्टर डेट इज पेड? सॉरी, या डेट, हाँ उसको भी, मतलब दैट अभी वो उसके फिलहाल तो चक्कर में नहीं जाएंगे, डेट वगैरह कैसे रहता है कंपनी के, डेट कितना कितना उन्होंने कम किया वो बाद में देखिए, फिलहाल जो जस्ट मतलब कीप इट सिंपल, ठीक है, उसको फिलहाल तो नहीं देखेंगे। अच्छा, मोस्टली गाइस डू वन थिंग, व्हाट योर डाउट्स आर देयर ना, जस्ट राइट ऑन अ पेपर एंड वी जस्ट टेक इट एट द लास्ट 10 मिनट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ वो बीच में टाइम जाएगा, अपना लिंक टूटेगा, ठीक है, बिकॉज़ वी आर हैविंग मोर देन 100 पीपल, तो नॉर्मली जस्ट जो भी डाउट है अपना पेपर पे लिख के रखो, इन लास्ट 10 मिनट आई विल जस्ट सेंड इट इन दैट, ठीक है। फिलहाल तो जस्ट कीप द थिंग सिंपल, वो फिलहाल तो कंपनी का डेट वगैरह कितना फिलहाल तो नहीं देखेंगे, fine, yeah. So profit after tax, if I just talk regarding, so it will be just like 370, 622, then 763, then 844, and then 940. Try to understand,
ठीक है. सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेट्स सी प्रॉफिट आल्सो इंक्रीजिंग, ये भी होना चाहिए इंक्रीज. ठीक है गाइस, इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी कि सेल्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट भी इंक्रीज है. नो, इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी. ठीक है, इट मे हैपन विद सम कंपनी कि सेल्स इंक्रीज हो रहा है बट प्रॉफिट कम हो रहा है. इट मे हैपन, सो इट इज आल्सो पॉसिबल. और प्रॉफिट इज जस्ट रिमेनिंग अ कांस्टेंट, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, दिस मेनली हैपन विद दोज द कंपनी व्हिच आर द न्यू वन. ठीक है, न्यू है मतलब उनको एक्सपांशन के लिए वगैरह पैसा लगेगा तो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम जाएगा. Are you getting it? ठीक है, so it's not at all compulsory कि अगर मेरा सेल्स ग्रो हो रहा है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ग्रो होना चाहिए, ऐसा नहीं है. Are you getting it? ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Getting it? ठीक है, then we have to just talk regarding the share price. Try to understand. ठीक है, these are the three things I'll be considering. Turnover कितना, प्रॉफिट कितना है, शेयर प्राइस. So share price in 2014 it was like 843 something. So I'm just taking one rough figure. मतलब जो भी था जैसे वो ईयर में ये वैल्यू टच हुआ था. ठीक है, 2015 it was like 2177, then it was like 2686, then it was like 3374, and 18 में it was like 4970. Now try to understand. ठीक है, so these are what some financials I'm just taken for this Britannia company in which we are having the data of the 5 years. In that we are having turnover कितना हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, शेयर प्राइस कितना है. ठीक है, अभी समझो. ठीक है, अभी देखिए टर्नओवर 2014 में it was 6348. Are you getting it? ठीक है, 2014 में जस्ट इतना टर्न होता है, इतना सेल किया. एंड इन 2018 we can see the 9000, मतलब if I just consider for the 5 years it has just grown like 50%. 50% increase हुआ, मतलब it's just like 1.5 times. Are you getting it? This price, this 9000, it's just like 1.5 times the 2014 का प्राइस. मतलब उसका टर्नओवर से कितना बढ़ा, 1.5 times बढ़ा over the 5 years का पीरियड. Try to understand. This is a turnover. ठीक है, and if I talk again the profit after tax, try to understand. Profit after tax, profit in 2014 it was 370 and 2018 is 948. मतलब कितना बढ़ा बॉस, नियर अबाउट कितने टाइम्स बढ़ा, 3 टाइम. 3 times. Are you getting it? Try to understand. Turnover मेरा 1.5 times बढ़ा, प्रॉफिट मेरा 3 times बढ़ा है. Are you getting it? And if I talk about the share price, it is just like this one. Now it was 843. I will just consider like 1000 was the calculation. Okay? And now in 2018 it was just around 5000. तो मेरा share price कितना बढ़ा boss? 5 times. Try to understand. ठीक है, so this is what you have to see. अभी क्या देख रहे हैं, देखो मतलब इसका जस्ट ग्राफ भी मिलता है वो आप देख रहे हैं. ठीक है, so मतलब अभी now this is called turnover जो भी है ना, this is called as a top line. Try to understand. इसके एक ग्राफ बनाते हैं जो फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह रहते हैं. ठीक है, तो ये टर्नओवर जो भी रहता है उसको टॉप लाइन बोलते हैं. ठीक है, नाउ जो भी ग्राफ व्हिच वी गेट बिकॉज़ ऑफ दिस पैट, दैट इज कॉल्ड द बॉटम लाइन. ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट टेलिंग यू सम न्यू थिंग्स. ठीक है, दिस वन इज दैट ग्राफ व्हिच इज गिवन द टर्नओवर, मतलब जो भी पॉइंट्स वो जॉइन कर रहा है, जो लाइन बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द टर्नओवर, दैट इज कॉल्ड एज द टॉप लाइन इन अ ग्राफ. ठीक है, एंड द लाइन व्हिच इज जस्ट गिविंग दिस पीएटी, दैट इज कॉल्ड द बॉटम लाइन. ठीक है, अब अपने को क्या करना है, व्हाइल इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्राफ कैसे होना चाहिए. ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज अ ग्राफ, दिस इज द ईयर्स वी आर हैविंग. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट द प्राइस वी आर हैविंग. ठीक है, नाउ टॉप लाइन इट मस्ट गो लाइक दिस वन, ये ऐसा ही जाना चाहिए. ठीक है, टॉप लाइन थोड़ा सा मतलब उसका सेल कंपनी का इंक्रीज होना ही चाहिए. ठीक है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अभी नाउ समटाइम्स यू मे हैव समथिंग लाइक दिस वन. ट्राई टू अंडरस्टैंड, मींस यू इफ द कंपनी इज लाइक एस्टैब्लिश्ड वन, सो स्टार्टिंग में इट विल जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल आल्सो. हां, बट कम नहीं होना चाहिए बॉस. ठीक है, डिक्रीज नहीं, मतलब प्रॉफिट कांस्टेंट रखा तो भी चलेगा एक बार, और वो कम नहीं होना चाहिए, तो वो कंपनी से फिलहाल तो दूर रहे. Are you getting it? ठीक है, so this is the one pattern of PAT. ठीक है, this is for we have seen for the top line ऐसे ही जाना चाहिए, increase होना चाहिए over the period. ठीक है, PAT if it's the initial, मतलब if it's a just started company then yes it may have like this one, मतलब थोड़ा flat होगा चलेगा, but mostly negative वालों को avoid करो. Are you getting it? Mostly negative वालों को avoid करो. ठीक है, after that you may have like मतलब bottom line which will be just following this top line, मतलब उन दोनों का slope सेम है. Try to understand, ये सब ग्राफ के बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है, उन दोनों का स्लोप सेम है. इफ देयर स्लोप इज लाइक सेम ना, देन इज गुड, मतलब यू कैन जस्ट थिंक ऑफ दिस वन, यू कैन जस्ट इन्वेस्ट इन दिस वन. ठीक है, बट नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज दैट इफ द कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड वन ना, if the company is established one, then after that they need not to do investment in like in the infrastructure or something like this. ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, इन दिस केस मतलब ब्रिटेन इज नाउ द एस्टैब्लिश्ड कंपनी, सो टर्नओवर इतना बढ़ रहा है. ठीक है, बट यू कैन सी द प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. क्यों? बिकॉज नाउ देयर एक्सपेंसेस दे हैव रिड्यूस्ड मींस व्हाट, इफ दे हैव टू जस्ट एस्टैब्लिश न्यू प्लांट, इफ दे हैव टू जस्ट एस्टैब्लिश न्यू बिल्डिंग और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, एक बार अगर एस्टैब्लिश होगा तो फिर से बार-बार लेने की जरूरत नहीं उनको. ठीक है, तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट कम रहेगा, बट बाद में एक बार वो मतलब जो भी खर्चा था, एक्सपेंसेस, अगर वो मेरा कम हो गया तो खत्म, प्रॉफिट अपने आप बढ़ने वाला है. Are you getting it? ठीक है, सो ओवर द इयर्स होना क्या चाहिए, एक तो जो भी मतलब मेरा जो बॉटम लाइन है उसका स्लोप
मतलब इट मस्ट बी जस्ट लाइक सेल्स, अदरवाइज उससे ज्यादा होना चाहिए स्टॉक। मतलब ये सेकंड लाइन, नाउ दिस इज थर्ड लाइन, आई एम जस्ट शोइंग रिगार्डिंग दैट बॉटम लाइन, ठीक है, और ये द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, मतलब ये जो मेरा प्रॉफिट का लाइन है और ये द बॉटम लाइन, इसको मतलब टॉप लाइन, इसको मतलब बॉटम लाइन, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू क्रॉस दिस वन, कभी क्रॉस नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज एक्सपेंसेस कुछ ना कुछ तो रहेगा, कंपनी में कुछ एम्प्लॉय नहीं है, उसको तो सैलरी देना ही पड़ेगा, ठीक है, इफ दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट थिंग इज दैट मतलब ये इन दोनों का स्लोप मैटर करेगा, हम लोग को स्लोप मैटर करेगा, ठीक है। इफ द टॉप लाइन इज ग्रोइंग लाइक दिस वन, ठीक है, देन आफ्टर दिस बॉटम लाइन व्हिच इज कॉल्ड द पैट लाइन, ठीक है, एटलीस्ट इट मस्ट गो मतलब एक तो पैरेलल टू दिस वन, अदरवाइज उससे ज्यादा स्लोप होना चाहिए उसका, ठीक है। तो ये कैटेगरी के ऊपर जाना चाहिए, मतलब एक तो फ्लैट के ऊपर जाना चाहिए, तब यू कैन जस्ट थिंक ऑफ कि मतलब यस वो कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, ठीक है। बट इफ द दैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गोइंग लाइक दिस वन, तो बाबा दो सेल्स इज इंक्रीजिंग, इसमें फिलहाल तो मत जा, इसमें फिलहाल तो मत जा, बिकॉज कंपनी फोकट का एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा कर रही है, विच इज नॉट गुड वन, ठीक है, ठीक है। फिलहाल तो जस्ट अवॉइड दिस कंपनी, हाँ जस्ट आफ्टर सम टाइम इफ इट इज ग्रोइंग देन यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट, अदरवाइज प्लीज डू नॉट थिंक, ठीक है। So this is the one strategy in which you have to just talk regarding the top line and the bottom line, because whenever you'll be just listening to these business channels like CNBC or Z Business and all this share market का channels, ठीक है, sometimes they talk like हाँ इसका top line बड़ा है, then इसका bottom line का growth ऐसा वगैरह, ठीक है। So at that time you must understand if they are talking about top line means what, they are talking regarding the sales, they are talking about the turnover, ठीक है, and whenever they talk like the bottom line means what, they are talking about the profit कितना हुआ। Are you getting it? And this graph is available in each and every company का annual report. At the end of the financial years, every company has to declare their annual report and उसमें ये ग्राफ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ्स आपको देखना है, and depending on that you have to just think कि मतलब इन्वेस्ट किधर करना है। Are you getting it? समझ में आ रहा है, ठीक है। And if the profit is increasing of that company, obviously उसका शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगा। Are you getting it? Profit अगर इंक्रीज होता है, शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड इट मे हैपन समटाइम कि उसका मतलब प्रॉफिट अगर मतलब लेट्स सपोज हियर 3 टाइम्स हो रहा है, बट शेयर प्राइस या उससे भी ज्यादा हो सकता है, बिकॉज लोगों को अच्छा लगने लगा कंपनी, यस मतलब ये अच्छा कर रहे हैं, देन पीपल आर ट्राइंग टू पे मोर एंड मोर फॉर दैट कंपनी, तो फिर उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि for this Britannia company, जो भी टॉप लाइन है, it has just growth like over the 5 years, it has just grown like 1.5 times. जो बॉटम लाइन है, it has grown like 3 times, मतलब इसका अगर टॉप लाइन ऐसा है तो बॉटम लाइन ऐसा जा रहा है, उसका स्लोप ज्यादा है, डबल है इससे, ठीक है। एंड शेयर प्राइस का तो उससे भी ज्यादा है। Are you getting it? तो शेयर उसका एक्चुअली ग्रो हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। सो whenever you are selecting for the company, you have to see this particular details. अब ये डिटेल्स कहाँ पे मिलेंगे? इधर यू मे गेट इट ऑन मनी कंट्रोल और यू मे गेट इट ऑन एनी screener.com और हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह, जिधर भी है आप देख सकते हो। मतलब जस्ट सर्च मारो फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर सो एंड सो कंपनी, यू विल गेट मेनी ऑप्शंस, ठीक है। डोंट वरी, आई विल बी टेलिंग यू व्हिच वेबसाइट टू प्रीफर, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज वन स्ट्रेटेजी हाउ टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक मार्केट। हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? Any doubt regarding this one? Yes, guys, any doubt so far? No, sir. Yeah, very good. Okay, so this is how we have to look for a company. So though it is an established company, ना, you have to see sales कैसे grow हो रहा है और PAT कैसे grow हो रहा है, ठीक है। अगर if they are growing अच्छा खासा, then yes, you can consider that company for investing for a long term. Once again, I am not talking regarding a short term in this entire course. Short term में तो हेलो सर, लॉस ही करेगा। हाँ बोल। सर वो शेयर प्राइस भी दिखता है क्या ग्राफ में? शेयर प्राइस तू मतलब तू निकाल सकता है ना उसका, मतलब प्राइस तो निकाल सकता है ना तू, मतलब ये नॉर्मली ग्राफ में ये दो देते हैं, टॉप लाइन और बॉटम लाइन, उसका ग्रोथ कैसे है, अच्छा, ओके, ठीक है। अदरवाइज यू कैन जस्ट प्लॉट योर ओन, मतलब ये डेटा ले ले और किसी तो ग्राफ एनालाइजर को, तो वो ग्राफ बना के देगा तेरे को, गेटिंग इट, ठीक है सर। ठीक है। हाँ यू कैन जस्ट यूज टू एनी डेटा रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक्सेल में भी डाल सकता है, अदरवाइज किधर भी डाल सकते हैं, जिधर जस्ट डेटा देने के बाद वो ग्राफ दिखाता है, ठीक है। यू कैन जस्ट यूज एनी ओके टेक्निक, सर। getting it, ठीक है। so now this will be given and depending on this one you have to think, हाँ बाबा ये कंपनी अच्छा है, इसमें अपन डाल सकते हैं पैसा, so this one was a strategy. Are you getting it? ठीक है। so जो लोग बोलते हैं कि मतलब I was talking about the myth renowned companies, ठीक है, बट इसका अगर सेल्स ग्रो हो रहा है, पैट अगर ग्रो हो रहा है, बिंदास डाल, डोंट वरी अबाउट दैट, तेरा पैसा बढ़ेगा, ठीक है। नाउ इन मोस्टली इन मतलब इन शेयर मार्केट में ना कॉमन सेंस इट मतलब इज प्ले अ रोल, ठीक है। ब्रिटानिया देखना, अगर इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द ब्रिटानिया, यार एवरीवन नोस ब्रिटानिया, एवरीवन बिस्किट खाता है उसका, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब ओवर द इयर्स पीपल विल स्टॉप ईटिंग द बिस्किट्स, नो पॉसिबल नहीं, उल्टा बढ़ते जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? उल्टा मतलब जो भी मतलब न्यू किड्स वगैरह है, मतलब वो ज्यादा बिस्किट्स वगैरह प्रेफर करते हैं, ठीक है। मतलब दिस इज अ कॉमन सेंस, मतलब यू हैव टू जस्ट लुक अराउंड, इट्स नॉट कि मतलब यू हैव टू हैव दैट ह्यूज फाइनेंशियल नॉलेज, नो,
देखना आजू बाजू में ब्रिटानिया कितना सेल होता है, हर एक दुकान में तेरे को मिलेगा, ठीक है, हर एक बच्चा खाता है, ठीक है, हर एक घर में ब्रिटानिया मतलब वो बिस्किट रहेगा। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन यू जस्ट मतलब हाउ जस्ट कॉमन सेंस, मतलब ये कंपनी ग्रो करने वाला है कि नहीं, ठीक है। नाउ जस्ट इफ आई जस्ट टॉक रिगार्डिंग डिमांड, व्हाट डू यू थिंक? नाउ यू हैव नॉट एनालाइज्ड एनीथिंग, मतलब यू डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल्स वगैरह कुछ नहीं, अभी जस्ट कॉमन सेंस यूज करना है। डिमांड यू आर जस्ट सीइंग इट अराउंड, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, कंपनी अच्छा है कि नहीं? मस्त है सर। मस्त है ना, ठीक है। अभी तक इधर में तुझे कुछ नहीं पड़ा अभी तक, नो फाइनेंशियल थिंग, आई हैव नॉट शोन यू द टर्नओवर, उसका पैट कुछ नहीं, जस्ट कॉमन सेंस इन शेयर मार्केट ना, कॉमन सेंस वर्क्स इज एवरी टाइम नॉट यूनिट के, मतलब तुझे अगर तू मतलब क्या बोलते हैं अनपढ़ भी रहेगा ना तो भी चलेगा, जस्ट कॉमन सेंस अवेक होना चाहिए तेरा, ठीक है। जस्ट लुक अराउंड ना, डिमांड कितना बढ़ रहा है। अरे मतलब अभी ऐसा हो रहा है कि मतलब मुझे कुछ भी छोटा मोटा चीज भी ले रहा है मैं डिमांड में जाता है, क्यों? मुझे पता है सस्ता मिलेगा यार। Are you getting it? ठीक है, there will be the offers like buy one get one free and what not and what not, मतलब जो तुझे नॉर्मल दुकान में मिलेगा ही नहीं, ठीक है। एंड ट्राई टू सी ना, मतलब पहले कितने डिमांड है अभी कितने ओपन हो रहे हैं, मतलब व्हाट द कंपनी इज एक्सपांडिंग। अभी इसके लिए मैंने कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं किया, जस्ट कॉमन सेंस। Are you getting it? ठीक है, एंड इफ आई जस्ट टॉक रिगार्डिंग दिस वन, इफ आई जस्ट सी द डिमांड का प्राइस, डिमांड का अपन देखते हैं, लेट्स सी। अरे इंटरनेट में स्लो क्यों, काम क्यों कर, मेरा माउस का कुछ झोल है क्या? जस्ट अ मिनट गाइस, I want to see that from minus actually, but ये slow होता ना तो फिर घंटा लगेगा। If I just see the demand का ग्राफ देखते हैं, डिमांड का प्राइस का ग्राफ, तो you will be just surprised. Yeah, demand share price. It was just this is I think 3 years ago, 3 or 4 years ago, ठीक है। यहाँ पे जाने का डिमांड सर्च प्राइस सर्च मारो, ठीक है, then here just make it max normally. Just make it max. Demand is actually a very supermart that the founding जो भी है, and Radhakishan Damani, you can see the name of that yeah promoter, ठीक है। Now if I just make it max, list कब हुआ था 2017 में, I was not wrong, 2017 में, ठीक है। That time the price was 600 and अभी देख it is just like 3600, मतलब what 6 times पैसा बढ़ा है just तेरा वो तो कितना 17 से ले अभी तक कितना 5 years भी नहीं हुए। Are you getting it? ठीक है, so this is what you have to look for, this is what you have to look for, मतलब ये सब देखना चाहिए, ठीक है। now this is मतलब now अभी मैंने कुछ एनालाइज भी नहीं किया, जस्ट मैं जस्ट आई जस्ट थिंक दैट यार डिमांड अच्छा कंपनी है, डिमांड मैं खुद जाता हूं, मतलब कौन सा तू प्रोडक्ट यूज करता है वो देखना है यार। Are you getting it? We are just going to DMart and we just buy whatever grocery and all जो भी मांगता है अपने को हर महीने को, एंड लोगों को तो हर महीने लगने ही वाले, हर लोग तो जाने ही वाले, ठीक है, उल्टा बढ़ेंगे और ज्यादा लोग। Are you getting it? ठीक है, so that's मतलब this is how you have to just use a common sense, वो भी चलता है मार्केट में, just common sense होना चाहिए, it's not कि मतलब you need to have a deep financial knowledge, no, not at all. Are you getting it? ठीक है, so this is how just you have to see the graph, now this is share price का graph actually, but you can just search for that pattern or everything, वो भी मिल जाएगा आपको, that I will just show you later on, ठीक है। सी डिमांड जस्ट मतलब कॉमन सेंस, कितना प्राइस बढ़ा है 5 साल में, पैसा तेरा 6 टाइम्स हो गया, एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट 17% रिटर्न, याद है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट मैंने कॉमन सेंस से तेरे को इतना पैसा बना के दिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, अभी डिमांड एस्टैब्लिश है, अभी इसके आगे ज्यादा ग्रो नहीं करेगा क्या? व्हाट डू ग्रो यू करेगा करेगा। ब्रो। अरे पक्का ग्रो करेगा। आर यू गेटिंग इट? फिलहाल तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग ही कंपनी है, तो ये तो जाएगा ही जाएगा, मैं तो बोलेगा बिंदास इसमें पैसा डाल फिलहाल तो, वो है 5 years के लिए मिनिमम, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। हाँ बट उससे पहले तो मतलब ऐसा नहीं कि वैसा तेरा लॉक होता है, तो कभी भी निकाल भी सकता है, जितना प्रॉफिट है तो बुक भी कर सकता है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, सो दिस इज मतलब हाउ यू हैव टू जस्ट एनालाइज, ठीक है, जस्ट कॉमन सेंस यूज करो। अभी जस्ट एनी और अच्छा कंपनी मतलब अभी तक फिलहाल तो आपने कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह कुछ स्टडी नहीं किया, ठीक है। अच्छा नॉर्मली मींस यू कैन सी दैट रिलायंस अच्छा कंपनी है कि बुरा कंपनी है? अच्छा है सर। अच्छा कंपनी Still we are not doing any financial research, मतलब just common sense, because Reliance है तो उसका जियो यार कितने लोग बढ़ रहे हैं, मतलब कितना कस्टमर्स है जियो का वगैरह, ठीक है। It's not only Jio, Reliance is actually in refineries and all, but just common sense, common sense I'm just talking about, nothing else, nothing great, ठीक है। I'm just telling you once again, convincing you कि इसमें लिए शेयर मार्केट के लिए you need not have that strong financial knowledge, जरूरत नहीं है, just common sense रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। Let's search for Reliance. I know it's a good company, ठीक है, just make it max. See over the years how it is growing, ठीक है। अगर 2017 में मैंने इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, इट वाज 500 रुपीज, एंड अभी देख 2175 समथिंग, मतलब कम से कम 4 टाइम्स तेरा पैसा किया। वंस अगेन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट 17% रिटर्न, ये 17% से भी ज्यादा है एनुअल रिटर्न अगर देखने का तो, बिकॉज जस्ट 4 इयर्स में इट हैज जस्ट मेड लाइक 500 का 2000, मतलब 5 टाइम्स पैसा किया उसने, सॉरी 4 टाइम्स जो भी है। आर यू गेटिंग इट? एंड 4 टाइम्स मतलब इट इज एक्चुअली मोर देन 17% रिटर्न,
ठीक है। तो जो भी मतलब मैंने आपको प्रॉमिस किया वो फेक नहीं है। जस्ट इफ यू जस्ट लुक अराउंड, जस्ट मतलब फाइनेंस का तो कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, हाँ कौन सा कंपनी अच्छा है उसको जस्ट तूने डाल दे तो भी मतलब यू कैन जस्ट अर्न अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, लेट्स टॉक वन मोर कंपनी, कौन सा भी अच्छा कंपनी बोलो। अभी तक अपन ने कुछ डिटेल्स वगैरह देखा नहीं फाइनेंशियल वगैरह, पर मेरे को पता है वो अच्छा है वो। टाटा मोटर्स। या टाटा मोटर्स, एक्चुअली ना टाटा मोटर्स अभी गिर अच्छा गया, है, गिर पहला गया। बहुत खराब था, पहला बहुत मतलब बिकॉज क्या बोलते हैं ऑटो इंडस्ट्री में थोड़ा या बट स्टिल आल्सो इफ यू जस्ट सी ना टाटा स्टील टाटा मोटर्स अभी बढ़ेगा, बिकॉज अभी जो इलेक्ट्रॉन उसका नेक्सॉन जो सेल होने लगा है ना बॉस, खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उसका नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, इफ यू सी द मैक्स वन, इसका थोड़ा गड़बड़ रहेगा बट ठीक है, अभी फिर से वो ग्रो करने लगे। ठीक है, टिल दिस पर्टिकुलर ईयर दिस द ग्राफ वी हैव टू सी लॉन्ग टर्म। ठीक है, सर टिल HDFC 2015 इट वाज ग्रेट, बट उसके बाद जैसे उसने वो जैगवार एंड वो लैंड रोवर वगैरह हायर किया था उस टाइम पे थोड़ा उसको लॉस हुआ था। ठीक है, बट अभी फिर से नाउ इट इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल। Are you getting it? Okay. Now let's if I just talk regarding Infosys. Now everyone know that it's a good company, IT company. Okay. And everyone just get place in that Infosys or TCS and all. Okay. If I just say regarding Infosys, let's see. Now we know it's a good company. Just now this is all just a common sense. Okay. We know IT is growing rapidly in this year, so Infosys is one of the leading industry in that. Infosys or TCS, you may take anything. Okay. If I say max, let's see. क्या ग्राफ है उसका? ऐसे ग्राफ होने चाहिए। Are you getting it? ठीक है, once again if I talk regarding 2017, ठीक है, उसका प्राइस 500 के आसपास था, अभी देख 1712, मतलब तभी भी मतलब कम से कम तेरा पैसा 3 टाइम्स किया उसने। ठीक है, विद इन 5 years 3 टाइम्स किया पैसा। वंस अगेन इफ आई जस्ट कैलकुलेट दैट एवरेज रिटर्न पर ईयर ना इट विल बी मोर देन 17%। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज फॉर द स्टॉक। ठीक है, सो वी हैव सीन द फर्स्ट स्ट्रेटेजी टुडे। ठीक है, क्या करना है, तो वी हैव टू जस्ट लुक फॉर दिस वन, टर्नओवर, पैट एंड शेयर प्राइस। अभी जस्ट मैंने ये जो ग्राफ दिखा वो जस्ट शेयर प्राइस किए थे, जस्ट शेयर प्राइस किए थे। ठीक है, बट बिफोर एनालाइजिंग इफ यू जस्ट डू यू कैन जस्ट सर्च फॉर दिस वन, एंड ये सब एनुअल रिपोर्ट में रहता है, अदरवाइज आप सर्च करो मिल जाएगा इंटरनेट पे। ठीक है, तो वंस अगेन हाउ यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट, यू हैव टू सी फॉर अ टर्नओवर कितना ग्रो कर रहा है। उसके बाद यू हैव टू सी द पैट, पैट नॉर्मली सी द पैट बिकॉज वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह मत देखो। ठीक है, नेट प्रॉफिट, नॉर्मली गो फॉर नेट प्रॉफिट, वो देखना है। उसके बाद या दिस आर द टू थिंग्स यू हैव टू से, एंड उसके उसका ग्राफ देखना है। ठीक है, तो नॉर्मली व्हाट आई टोल्ड, मतलब स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, एटलीस्ट ये दोनों ग्राफ मतलब पहले तो ये पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए उसका। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मैथ्स। ठीक है, दोनों का स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एंड जो पैट का स्लोप है ना इट एक्चुअली मस्ट बी ग्रेटर देन दिस पर्टिकुलर टॉप लाइन का ग्रोथ। बॉटम लाइन का जो भी ग्रोथ रहेगा जो स्लोप रहेगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस टॉप लाइन का, मतलब कंपनी अच्छा कर रही है अभी, मतलब एस्टैब्लिश है, दैट इज अ साइन फॉर द एस्टैब्लिश कंपनी। ठीक है, तो उनका एक्सपेंस कम हो रहा है और प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, दैट इज द साइन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, एंड वैसे कंपनी में तो इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज यू मे जस्ट गो फॉर अ शेयर प्राइस देखने का ओवर द इयर्स क्या हो रहा है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन जस्ट इन्वेस्ट। फिलहाल तो मैं टाटा मोटर्स, फिलहाल मतलब ये स्टेज पे, अगर ये नॉलेज पे, आई विल नॉट सजेस्ट कि टाटा मोटर में जाओ, आई विल नॉट सजेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेज, मतलब इतना नॉलेज के बाद। Are you getting it? ठीक है, so this is how you just मतलब you have to use a common sense, just search मारना शेयर प्राइस, उसको मैक्सिमाइज करना है, एंड you have to just check मतलब कितना वो शेयर प्राइस बढ़ा है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट you have to just think, हाँ अगर ये कंपनी मैंने सुना है अच्छा कंपनी, यू कैन इन्वेस्ट इन दैट। Are you getting it? ठीक है, so this is the first strategy which I just told to you. Any doubt in this? Any doubt? नो कुछ सर। नहीं सिखाया है आपने, जस्ट देखा टर्नओवर क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, शेयर प्राइस क्या होता है। टर्नओवर को सिर्फ टॉप लाइन बोलते हैं, एंड प्रॉफिट को बॉटम लाइन बोलते हैं, बस इतना सा ही चिंटू का फंडा सीखा है। Are you getting it? ठीक है, एंड वी आर जस्ट सीन डिफरेंट मिथ्स रिगार्डिंग शेयर मार्केट, एंड उनको जस्ट बस किया, बाकी कुछ नहीं। Are you getting it? ठीक है, I hope no doubt so far. So shall I continue or shall I go to the doubt session? What do you think? कंटिन्यू। ओके ठीक है, अभी फिलहाल और मतलब अभी जस्ट सेकंड फॉर द 5 more minutes, अभी कैसे होता है। ठीक है, नाउ सम मोर फंडास इन अ शेयर मार्केट दैट वी रिक्वायर, सम बेसिक्स। ठीक है, वी जस्ट कंटिन्यू फॉर द 5 more minute, एंड देन आई विल जस्ट गो टू द, अरे मेरा माउस भी नहीं चल रहा। ओके, आई विल जस्ट गो टू द डाउट सेशन। ओके, या लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट, अभी कंपनी मार्केट में आती वगैरह कैसे, तो वो सब आपको मतलब आई वांट टू टेल यू, मतलब कंपनी लिस्ट वगैरह कैसे। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, बिफोर दैट आई विल जस्ट टॉक रिगार्डिंग सम, मतलब इनकम कैसे होता है अपना। फर्स्ट थिंग इज दैट शेयर प्राइस बढ़ेगा उससे भी इनकम होता है, बट देयर आर सम मोर वेज इन शेयर मार्केट बिकॉज ऑफ व्हिच वी जस्ट गेट इनकम। ठीक है, सम इट इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल। ठीक है, there is one concept which is called as a dividend in a share market.
Try to understand. ठीक है, so by using this one, so we can just earn. ठीक है, and if I just keep something in FD, try to understand. If I just keep something in like fixed deposit, so what do we get? That is the interest because of which we just earn. ठीक है, so if I just keep something in FD और फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो बैंक में रखता उससे मतलब कमाई कैसे होती है? जस्ट बाय उसका इंटरेस्ट. ठीक है, एंड इन शेयर मार्केट जस्ट मतलब वी आर हैविंग द शेयर प्राइस एप्रिसिएशन, मतलब शेयर प्राइस जो भी बढ़ता है उससे तो कमाएगा ही, बट देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज कॉल्ड द डिविडेंड बिकॉज़ ऑफ व्हिच वी कैन जस्ट अर्न. ठीक है, अभी डिविडेंड एंड इंटरेस्ट मतलब ये इंटरेस्ट क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये एक फंडा समझो क्या क्या चीज है. ठीक है, अभी इंटरेस्ट क्या रहता है? ठीक है, इंटरेस्ट इज व्हाट व्हिच इज गेट ऑन सम फिक्स्ड डिपॉजिट. वी जस्ट गेट ऑन सम फिक्स्ड डिपॉजिट. आई गेट इट. ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब क्या? मैं बैंक में जाएगा. ठीक है, लेट्स सपोज आई जस्ट कीप 5 लाख रुपीस. ठीक है, लेट्स सपोज जब मैंने लेट्स सपोज आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द 1st Jan. ठीक है, 1st Jan 2021 एंड आई एम जस्ट टेकिंग इट फॉर द 1 year अप टू द 1st Jan 2022. ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड आई एम जस्ट लॉकिंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट. इसका मैं एफडी बना रहा हूं, फिक्स्ड डिपॉजिट बना रहा हूं 5 लाख का. ठीक है, लेट्स सपोज एट 1st January, ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1st January 2021 बैंक ने मुझे जो भी इंटरेस्ट ऑफर किया था इज जस्ट लाइक अ 6%. Just 6%. I don't understand. Interest and dividend में फर्क क्या होता है? I'm just telling you. ठीक है, if I just go for बैंक में तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है, if I just go for शेयर मार्केट मुझे डिविडेंड मिलता है. ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है वो समझेंगे आप. बिकॉज बैंक में अगर मैं 5 लाख डालेगा तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट वो मेरा कमाई है, एंड अगर शेयर मार्केट में डालेगा दिस इज वन ऑफ द यू नो सो मतलब वन ऑफ द रिसोर्स ऑफ इनकम. ठीक है, शेयर प्राइस एप्रिसिएशन वो तो है, बट डिविडेंड भी एक रहता है जिसकी वजह से भी मुझे इनकम मिलता है. ठीक है, एंड आई जस्ट टेलिंग यू डिविडेंड क्या होता है. डोंट वरी, वी आर गोइंग टू सी दिस एवरीथिंग इन डिटेल लेटर ऑन. ठीक है, लेट्स सी. सो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? यू हैव टू जस्ट कीप इट फॉर सम पीरियड, लेट्स सपोज 1 year 2 year 3 year जो भी है. ठीक है, अभी फिक्स डिपॉजिट का फंडा कैसे है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ इफ आई जस्ट डिपॉजिट दिस वन एट द 6% इंटरेस्ट पे मैंने डिपॉजिट किया. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, एंड लेट्स सपोज इन मिडिल ऑफ द ईयर, लेट्स सपोज अराउंड द जून ऑफ 2021. ठीक है, बैंक ने डिसाइड किया, मतलब अभी आपने देखा होगा कि मतलब जो इंटरेस्ट रेट वगैरह वो रिवाइज हो गया. इट वाज 6% होगा समथिंग, अभी वो 5% पे आ गया, 4% पे आ गया. ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ आई हैव इन्वेस्टेड इन 1st Jan 2021. ये टाइम पे मैंने इन्वेस्ट किया 6% के लिए. ठीक है, बैंक ने जो भी रेट है, इंटरेस्ट का रेट है, दे रिवाइज इन लेट्स सपोज जून 2021 व्हिच दे हैव जस्ट डिसाइड किया अभी 4% देने का. ठीक है, नाउ व्हाट डू यू थिंक आफ्टर दिस जून जो भी मतलब टाइम पीरियड है उसके लिए मुझे कितना रिटर्न मिलेगा? 6% की 4%? 6% की 4%. बैंक ने अभी डिसाइड किया कि जून के ऑनवर्ड दे विल गिव 4%. ठीक है, बट तूने एक्चुअली एफडी लिया था 1st Jan 2021 को, जब दे हैव प्रॉमिस किया तुझे 6% देंगे. ठीक है, बट अभी इधर से उन्होंने मतलब नाउ दे हैव जस्ट चेंज देयर पॉलिसी कि 4% देंगे. तो व्हाट डू यू थिंक ये जून 2021 के बाद तेरे को ये अमाउंट पे कितना रिटर्न मिलेगा? 4% की 6%? 4%. ठीक है, कीप इन माइंड वो 6% ही मिलेगा. जितना तूने फिक्स किया था बैंक को वो कंपल्सरी था, वो इंटरेस्ट देना ही पड़ता. ठीक है, आफ्टर द लेट्स सपोज दे हैव मेड 1%, तो भी you have invested at 6% ना, तो मतलब till this particular period जब तक वो एफडी मैच्योर नहीं होते, मैच्योर मींस वो एंड टाइम तक नहीं जाता. ठीक है, till that period you have to give the 6%. that bank you have to give, bank will give you the 6% only. try to understand, उससे वो कम नहीं कर सकते. हाँ, इसके बाद if you just renew this particular one तो फिर जो नया टर्म्स एंड कंडीशन वो तेरे को लगेगा. बट till that period जो भी तूने स्टार्टिंग में लिया था ना, बस उसका उतना ही तेरे को रिटर्न देंगे. Are you getting it? ठीक है, मींस what I want to tell you is that कि बैंक के ऊपर है मतलब जो भी इंटरेस्ट है उन पे मतलब वो देना उनको कंपल्सरी है. मतलब ओवर दैट पर्टिकुलर पीरियड, जितने पीरियड के लिए तूने वो पर्टिकुलर एफडी लिया, इट मे फॉर 1 year 5 years 10 year 20 year जितना भी है, उतना पर्टिकुलर पीरियड के लिए तेरे को उतना इंटरेस्ट देना उनको कंपल्सरी है. ठीक है, अभी डिविडेंड चीज क्या रहता है? डिविडेंड जस्ट कंप्लीट डिविडेंड. ठीक है, और मैंने लेट्स सपोज कुछ तो पैसा मैंने शेयर मार्केट में डाला है 5 लाख वगैरह जो भी शेयर मार्केट में डाला है. ठीक है, सो लेट्स सपोज आई हैव जस्ट इन्वेस्टेड विद 5 लाख रुपीस. ठीक है, लेट्स सपोज वो शेयर का प्राइस कुछ तो 5000 है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, शेयर का प्राइस 5000 है. ठीक है, मैंने 5 लाख रुपए डाला है, शेयर का प्राइस में 5000, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? 100 या 100 शेयर्स विल बी देयर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, 100 शेयर्स विल बी देयर विद मी. ठीक है, अभी डिविडेंड का फंडा क्या होता है? ठीक है, समझो. अब डिविडेंड जो भी मिलता है ना वो नंबर ऑफ शेयर्स में मिलता है, नंबर ऑफ शेयर्स में मिलता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड डिविडेंड क्या रहता है. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस वन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड? फाइन. सो डिविडेंड जो भी मिलता है इज जस्ट वी जस्ट गेट इट ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, एंड कंपनी डिक्लेयर्स लाइक एंड लेट्स सपोज मतलब मेरा शेयर का प्राइस 5000 है एंड मेरे पास अभी 100 शेयर्स है. ठीक है, नाउ कंपनी डिक्लेयर करता है डिविडेंड. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें इंटरेस्ट में बैंक को कंपल्सरी किया मतलब वो द पीरियड मतलब वो जो पर्टिकुलर पीरियड के लिए जिसने उसने मतलब बुक किया हुआ एफडी. ठीक है, जो भी लॉक इन पीरियड मतलब 1 year 5 year जो भी है. ठीक है, उसको 6% के ऊपर देना कंपल्सरी है. ठीक है, अभी डिविडेंड कैसे होता है कि नाउ दिस इज व्हाट दिस विल बी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, मतलब ये कंपनी डिक्लेयर करेगा कितना देंगे. अब डिविडेंड कैसे होता है मतलब दे जस्ट से कि 100% डिविडेंड 200% डिविडेंड ऐसा कुछ तो रहता है.
ठीक है। नाउ इफ आई से 100% डिविडेंड मतलब तेरे को कैसे कितना पैसा मिलेगा 5000 रुपीज ऑन ईच शेयर। समझो समझो समझो, थोड़ा सा बाउंसर जाएगा बट डोंट वरी, वी आर गोइंग टू गो इन डीप ऑफ दिस वन। फिलहाल तो मैं ये टर्म में कॉइन कर रहा हूँ आपको फिलहाल तो, बट ऐसे तो समझे। ठीक है, अभी डिविडेंड क्या होता है, नाउ कंपनी जस्ट टेल की मतलब 100% डिविडेंड 200 डिविडेंड ऐसे ही रहता है, 100% 200% ऐसे ही रहता है, यू विल नॉट गेट 2% 5% ऐसे नहीं रहता है। ठीक है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट ऑन अ शेयर प्राइस, वो शेयर प्राइस पे कभी नहीं रहता है। इट इज नॉट अ शेयर, इट इज एक्चुअली ऑन अ फेस वैल्यू, इट इज एक्चुअली ऑन अ फेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू क्या रहता है, वी विल जस्ट डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, इट इज ऑन अ फेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ कंपनी कैन बी इधर 1 2 5 और 10, ये सेबी के गाइडलाइंस है, समझेगा। डोंट वरी, यू विल जस्ट गेट ईच एंड एवरीथिंग टू नो। ठीक है, प्लीज जिसका भी माइक अनम्यूट नहीं है प्लीज म्यूट करो, डिस्टर्ब हो रहा है। या नाउ दिस इज ऑन अ फेस वैल्यू। नाउ जो भी कंपनी डिक्लेयर करे डिविडेंड, ठीक है, व्हाट आर डिविडेंड, नाउ लेट्स सपोज इफ आई जस्ट टॉक रिगार्डिंग यार रिसर्च में जाएगा, बस फटाफट होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। टाइम लेता नहीं वाला प्रॉब्लम। I just want to search for IOC का डिविडेंड, मतलब IOC ने मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उसने जस्ट डिविडेंड अनाउंस किया था sometime before, let it be, I will just be on a board only। ठीक है, कीप इन माइंड जो भी डिविडेंड अनाउंस करते हैं, परसेंटेज जो भी रहता है, इट इज ऑन फेस वैल्यू नॉट ऑन अ मार्केट प्राइस। अरे मार्केट प्राइस पे अगर 100% देगा तो कंपनी का दीवाना निकल जाएगा। ठीक है, 100% में अगर 100% में अगर शेयर का प्राइस 5000 है तो 5000 देना पड़ेगा, नो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन फेस वैल्यू। ठीक है, एंड फेस वैल्यू ऑफ दैट कंपनी विल बी द 1 2 5 और 10, ये डिफाइंड है, मतलब ये इतना ही रहता है मोस्टली। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज माय पर्टिकुलर शेयर का फेस वैल्यू इज 10, ट्राई टू अंडरस्टैंड शेयर प्राइस इज डिफरेंट एंड फेस वैल्यू इज डिफरेंट, ये दोनों चीज अलग है। एंड डिविडेंड जो भी रहता है इट इज ऑन अ फेस वैल्यू, इट इज ऑन अ फेस वैल्यू। ठीक है, now let's suppose if my face value is a 10 and if the company declare कि I will be giving a 100% dividend, मतलब क्या, how much you will be getting, how much you will get dividend, फेस वैल्यू का या फेस वैल्यू तो जो 10 रुपीज 10 ऊपर दे रहे हैं। ठीक है, 10 रुपीज 100% मतलब 10 रुपीज मिलेगा। 10 रुपीज मतलब क्या, हर एक शेयर पे यू विल बी गेटिंग अ 10 रुपीज एंड नाउ यू आर हैविंग 100 शेयर, मतलब तेरे को 1000 रुपीज डिविडेंड मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या, समझो मतलब ये कैसे फंड है। ठीक है, बिहाव सीन कितना रुपए तूने इन्वेस्ट किया, उसके बाद शेयर का प्राइस क्या है, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, उसके बाद फेस वैल्यू क्या है एंड उसके बाद डिविडेंड क्या है। टाइप टू सब अलग अलग चीजें समझो। ठीक है, ये सब मार्केट में काम में आएगा। वन सेकंड, इतना मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो 5 लाख इन्वेस्ट किया तब लेसो शेयर का प्राइस मेरा 5000 था। ठीक है, सो इन माय अकाउंट देयर विल बी द 100 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स विल बी द 100। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, सो जो डिविडेंड का मनी रहता है दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितना, उसके ऊपर तेरा मतलब कितना मनी आएगा वो देखेगा। ठीक है, एंड डिविडेंड जो भी कंपनी डिक्लेयर करते हैं दैट इज ऑन अ फेस वैल्यू। इफ दिस इज 200% मींस व्हाट, इसका 200%, 10 का 200%। ठीक है, 10 का 200 मतलब 20 रुपीज, सो ऑन ईच शेयर यू विल बी गेटिंग 20 रुपीज एंड अगर तेरे पास 100 शेयर्स है तो यू विल बी गेटिंग 2000 रुपीज। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, अभी डिविडेंड कैसे रहता है, नाउ दिस इज व्हाट द कंपनी इज डिक्लेयरिंग। ठीक है, अब ये डिविडेंड ये कंपनी के ऊपर रहता है। इधर कैसा मतलब बैंक अभी व्हाट यू कैन से दैट, मतलब इस बैंक अभी व्हाट यू कैन से इज नाउ बाउंड कि मतलब उसको 1 ईयर तक उसको 6% रिटर्न दे रहे हैं। अब ये इसकी ये सब कंपनी की मर्जी रहती है डिविडेंड देने का, उनको चाहिए तो दे सकते हैं अदरवाइज नहीं दे सकते। दैट इज डिपेंडिंग ऑन कंपनी, उनको देना है तो दे अदरवाइज मत दे। कितना परसेंट देना दैट इज आल्सो डिपेंड ऑन डिविडेंड कंपनी। कीप इन माइंड, इधर इंटरेस्ट में ये सब क्या बोलते हैं अपन, ये सब बाउंड था, इसको मतलब इतने टाइम के लिए देना ही पड़ेगा, बट ये इधर बाउंड नहीं है कुछ कंपनी के लिए। डिविडेंड देना है तो दे सकते हैं अदरवाइज नहीं भी दे सकते। इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी। हाँ, उनको चाहिए साल में 6 बार देना है, 6 बार भी दे सकते हैं। इफ दे वांट कि मतलब साल में एक भी बार नहीं देना, एक भी बार नहीं, यू कैन नॉट मतलब यू कैन नॉट जस्ट क्लेम कि नहीं मेरे को अभी चाहिए करके, ऐसा नहीं होता है। दैट डिपेंड्स ऑन अ कंपनी, दैट इज द डिफरेंस इन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है, एंड डिविडेंड इट इज ऑन द फेस वैल्यू। वन मोर थिंग रिगार्डिंग द इंटरेस्ट। ठीक है, अभी इंटरेस्ट में कैसे होता है कि इंटरेस्ट में व्हाट आर द इंटरेस्ट यू गेट, मतलब व्हाट आर इंटरेस्ट यू अर्न, उस पर टैक्स लगता है, उस पर टैक्स लगता है, उस पर टैक्स लगता है। जो भी इंटरेस्ट जो भी मिलेगा यू विल बी गेटिंग, मतलब दे विल अप्लाई सम टैक्स ऑन इट। ठीक है, बट डिविडेंड पे देयर विल नॉट बी एनी टैक्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, नाउ दिस इज व्हाट आई एम जस्ट टॉकिंग 2 इयर्स बैक। अभी टैक्सेशन उनका रिवाइज किया है, जो आपको मतलब आई विल बी गिविंग यू एज अ केस स्टडी, मतलब ये आपका एक असाइनमेंट रहेगा टैक्सेशन पे। ठीक है, बट मतलब बिफोर ले सपोज 2 इयर्स। ठीक है, जो भी डिविडेंड से तू अर्न कर रहे हैं दैट इज जस्ट लाइक विदाउट टैक्स, मतलब ले सपोज इफ यू आर अर्निंग 1 लाख फ्रॉम अ डिविडेंड इन अ ईयर, 1 लाख फ्रॉम डिविडेंड फ्रॉम इन अ ईयर। ठीक है, तो वो टैक्स फ्री रहेगा। देयर इज सम लिमिट की मतलब हाँ 10 लाख के ऊपर जाएगा तो टैक्स वगैरह देता है, बट फिलहाल उसमें नहीं घुसेंगे अपन। ठीक है, बट डिविडेंड पे जो भी इनकम आता है मोस्टली इट इज अ टैक्स फ्री गाइस, टैक्स फ्री। डायरेक्ट ये पैसा डायरेक्ट अकाउंट में आता है, मतलब बैंक अकाउंट में आता है।
ठीक है, एंड इट इज अ टैक्स पे, बट इंटरेस्ट से जो भी मिलेगा वो टैक्सेबल रहता है। Are you getting it? ठीक है, so these are the two concepts we have seen. Interest क्या रहता है that we already know, and we have seen शेयर मार्केट में जो भी मतलब और एक कंपनी होता है वो कमाई डिविडेंड से होता है। ठीक है, so डिविडेंड आया कि नहीं, जस्ट लेट मी चेक। ये ऐसा हैंग होता है ना माउस मेरा। सर आईओसी का 120% है। या 182% ना समथिंग, एंड दे आर गिवन लाइक 12 रुपीस टू दिया अभी। हाँ 12.45 रुपीस। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, I want to show it. Let's suppose I will just go here. This websites and all, don't worry, I will be giving you everything about this one. Let me just show you. फटाफट आ जाए यार, टाइम मत लगा। Come on, come on, come on, load it fast. अच्छा, I hope you understood interest क्या होता है, dividend क्या होता है। Don't worry, once again we are going to go in deep of this one, ये सब चीज के, ठीक है। अच्छा, this is a graph, this is a website which I used to prefer for the graphs, इसमें बहुत मस्त ग्राफ आते हैं। ये फिलहाल तो टेक्निकल एनालिसिस है, इसके डिटेल में मैं इतना नहीं बताऊंगा आपको, but this graph you can also obtain, ये फ्री में देता है investing.com, which I prefer for a graph, investing.com। अरे बहुत टाइम ले रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसका। तो मेरा माउस मार्क कौन से निकलना है, ठीक है, लेट इट बी। सो दिस आर द टू कांसेप्ट व्हिच यू हैव सीन, वी विल सी नेक्स्ट, सो डोंट वरी, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, हैव यू आर यू जस्ट क्लियर विद डिविडेंड क्या होता है, आइडिया तो आया कम से कम कैसे होता है, क्या होता है, सर डिविडेंड कितने टाइम के बाद मिलता हाँ है? बोल, अभी जो भी डाउट रहेगा प्लीज अच्छा, आस्क। सर वो फिक्स टाइम के बाद मिलता है क्या डिविडेंड? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो पूरा पूरा कंपनी के ऊपर, उनको देना है तब दे सकते हैं, मतलब उन्होंने आज दिया कल भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने आज दिया, इफ दे वांट कि पूरा साल भर नहीं देना, बिंदास, दैट डिपेंड्स ऑन अ कंपनी, कितना देना है, कब देना है, सब एवरीथिंग डिपेंड ऑन अ कंपनी, उनको देना है तो दे, अदरवाइज मत दे। बट इंटरेस्ट उनका बाउंड रहता है बैंक को कि उनको ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे देना ही देना है, ठीक है। बट डिविडेंड इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी फॉर कंपनी, उनको अगर लगा कि चल पैसा बांटना है लोगों में तो बांटेंगे, अदरवाइज नहीं बांटेंगे, दैट टोटली डिपेंड ऑन द कंपनी, नो वन कैन जस्ट क्लेम फॉर इट कि मुझे ये चाहिए करके, नो, दैट एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। एनी अदर डाउट? सर तो सर अभी एक शेयर प्राइस है समझो 500 और हम लोग ने तब पैसा डाला और फिर शेयर प्राइस 1000 हो गया, तो हम लोग जब भी पैसा निकालेंगे तो हम लोग को मिलेगा ना प्रॉफिट के साथ, तो Yes, वो वो तो तेरा नहीं, मतलब that's why I told ना, there are two ways in मतलब to make a income in share market, एक तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, वो भी तेरे को मिलेगा, मतलब तूने 5 लाख डाला है, 5,000 था उसका, अगर 10,000 होगा तो तेरे को 10 लाख मिलेगा, वो भी है, एंड एज वेल तेरे को डिविडेंड भी मिलते जाएगा। ओके ओके सर, समझ में आ रहा है क्या, डिविडेंड भी हाँ मिलते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड वो तेरा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आता है, एंड जो शेयर प्राइस जो बोलता है ना, जब तू सेल करेगा तब तेरे बैंक अकाउंट में आएगा। आर यू गेटिंग इट? डिविडेंड अपने आप यस तेरे सर बैंक अकाउंट में आएगा, वो कंपनी डायरेक्टली तेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। बट जो भी तो शेयर प्राइस का वगैरह बोला उसके लिए, यू हैव टू सेल इट, जब तक तू सेल नहीं करता तब तक तेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता। समझ में आ रहा है क्या? सर ये जो डिविडेंड का पैसा इन लोग कहाँ से लाते हैं, लाइक फ्रॉम द ये नेट प्रॉफिट प्रॉफिट? से, जब प्रॉफिट होता है कंपनी को, मतलब जब वो इफ दे से यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का सम परसेंट दे जस्ट गिव इन डिविडेंड इफ दे वांट, गेटिंग ओके इट? सर। Okay, yeah. Anything else? I will just stop recording. 10:30 हुआ है guys. If you want to be over here, you can be. Otherwise, you may just go for just a minute.